سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ملګرو نن مو یو ویډیو د افغانستان د پرمختګ په اړه تاسو ته پیدا کړې ده او د افغانستان د پرمختګ مطلب دا یو زیری وي. بدبختانه او متاسفانه او ډیره بد خبره او د افغانستان خرابې تالي دا دي چې افغانستان په وچه کې ګیري یو هیواد دی او هغه هیوادونه چې په وچه کې ګیري تل هغه هیوادونو ته محتاج وي چې هغوی بحر ته لاره لري. نو موږ دلته دوه هیوادونو ته محتاج یو ګاونډیانو ته، یو پاکستان ته بل ایران ته. اوس تاسې مقایسه کوئ چې د پاکستان محتاجي به ښه وي او که د ایران محتاجي به ښه وي. تېر تاریخ ته وکتل شي پاکستان موږ سره ښه ګاونډیتوب نه دی پاللی او د دغه زموږ د دغه ضرورت نه ډېره غلطه استفاده کړې ده. خو بل طرف ته ځمکنی ترانسپورت دی. په ځمکني ترانسپورت کې بیا تر ټولو ارزانه ترانسپورت هغه د ریلوی یا د ریل پټلۍ دغه ترانسپورت ډېر ارزانه دی او نننی ویډیو د همدې دپاره چې افغانستان کوشش کوي 2020 کال نه دا کوشش روان دی چې خپله د ریل یو شبکه داخلي، البته موږ د شمال کې یو دوه ګاونډیانو سره د پټلۍ لرو، د ریل پټلۍ لرو، خو هغه داخلي نه ده، د هغې مربوط د خپله داخلي ریل پټلۍ باندې کار وکړو. نو دغه ویډیو دغه راپور په دې پروژې باره کې یو هندي جوړ کړی دی. هغه ملګري چې په هندي پوهېږي نو هغې ته خو اسانه ده، هغه چې نه پوهېږي هغه مهمې خبرې به ورته بیا زه ترجمه کوم. راځئ دا راپور په ګډه ګورو بیا خبرې کوم. अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया के 5 देशों को एक साथ जोड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, बीते 2 सालों में अफगानिस्तान जिस तरह से तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि जल्द ही अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट का सबसे समृद्ध देश बन जाएगा। और विकास के इस काम में आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान ने 5 कॉरिडोर रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा करने की ठान लिया है। हम बात कर रहे हैं खाफ हेरात रेलवे प्रोजेक्ट की। खाफ हेरात چې खाफ په ایران کې د हेरात په افغانستان کې د ریل پټلۍ ده، د 200 کیلومترو نه زیاته اوږده ریل پټلۍ ده او دا به افغانستان د 4-5 هیوادونو سره چې ایران دی، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین سره، حتی قزاقستان سره، د هیوادونو سره نښلي او د دې نه علاوه به ډېر امکان لري چې دا بیا وروسته وغځېږي او د ترکیې هیواد د ریل شبکه هغې سره وصل شو او د ترکیې د لارې بیا اروپا سره وصل شو. نو ډېر یو حیاتي پروژه ده د افغانستان لپاره जो अफगानिस्तान को पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करने वाला है। तो दोस्तों, क्या है ये खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क और कैसे ये अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में हुक्म का इक्का बनने वाला है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, खाफ हेरात रेलवे प्रोजेक्ट ईयर 1970 में दाऊद खान के शासन में शुरू किया गया था, लेकिन अफगानिस्तान वॉर्स के चलते ये प्रोजेक्ट कभी पूरा हो ही नहीं पाया। खाफ हेरात रेलवे प्रोजेक्ट ईरान और अफगानिस्तान को आपस में रेलवे लाइन के जरिए जोड़ने का एक आसान जरिया है ताकि इन 2 पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक रूप से आदान प्रदान हो सके। अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये प्रोजेक्ट ईरान से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित चीन को आपस में रेलवे नेटवर्क के जरिए जोड़ने का काम करेगा। दोस्तों, दुनिया की लगभग सभी देशों में रेलवे लाइन उन्हें दुनिया से जोड़ने का सबसे आसान तरीका है। इससे न केवल व्यापार के आयात निर्यात में सुगमता रहती है बल्कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन सिविलाइजेशन का भी विकास होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मॉडर्न एरा में आज भी कई देश हैं जहां कोई भी घरेलू और इंटरनेशनल रेलवे नेटवर्क नहीं है और इन्हीं में से एक है अफगानिस्तान। اوسنۍ زمانه په اوسنۍ عصر کې ریل پټلۍ ډېر زیات ارزښت لري. دا نه یوازې چې انسانان انتقال د یو ځای نه بل ځای ته، نه یوازې چې تجارتي مالونه په ارزانه توګه انتقالوي، بلکې فرهنګونه، تمدنونه، ژبې، دینونه، دغه شیانو ترمنځ تبادله هم راولي. د دې ترڅنګ مصارف کمیږي او سیاحت ته هم لاره هواریږي. ځینې هیوادونه دي چې لاسرسی نه لري چې یو د هغې نه افغانستان دی او د افغانستان یو علت هم دا دی ځکه چې افغانستان تر 80% پورې د افغانستان خاوره او د افغانستان ځمکه هغه غرنۍ ده او په غرونو کې د ریل پټلۍ ویستل ډېر زیات مصارفو ته ضرورت لري. نو زما په نظر یو علت هم کیدی شي همدا وي چې چا زړه نه دی ښه کړی هغه د افغانستان هغه جغرافیوي جوړښت او شکل دی.
अफगानिस्तान के पास अपना कोई घरेलू रेलवे नेटवर्क नहीं है, लेकिन दशकों पहले शुरू किए गए खाफ हेरात प्रोजेक्ट के जरिए अब ये देश खुद को उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से जोड़ता है और अब इसमें ईरान का नाम भी जुड़ गया है। खाफ हेरात रेलवे अफगानिस्तान को रेलवे नेटवर्क के जरिए ईरान से जोड़ती है, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। 1970 में शुरू हुई ये परियोजना अफगान एंग्लो वॉर्स के चलते सालों तक रुकी रही, लेकिन इसे फिर से ईरान और अफगानिस्तान में शुरू किया गया है। 2016 में ईरान में इसका काम पूरा हुआ और अफगानिस्तान में शुरू हो गया और अब दिसंबर 2020 में इसका उद्घाटन किया गया है। खाफ हेरात प्रोजेक्ट में 225 किलोमीटर रेलवे लाइन को ईरान में खाफ और अफगानिस्तान में हेरात को आपस में जोड़ा गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला लॉन्ग टर्म लाइफलाइन प्रोजेक्ट में से एक है। इस रेलवे के पास रोजानाक में 1600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला 2 मंजिला स्टेशन है और तीसरे स्टेज के लास्ट में पैसेंजर्स की सेवाओं और सुविधाओं के लिए एक पैसेंजर्स स्टेशन भी है। रेलवे में एयरलाइंस की सुविधाओं से लेस इस रेलवे स्टेशन में पासपोर्ट, वीजा, सर्विस टैक्स, टिकट काउंटर के लिए अलग से एक बिल्डिंग बनाई गई है। साथ ही इस रेलवे की शुरुआत में हर साल ये 6 मिलियन टन कार्गो और 10 लाख पैसेंजर्स को लाने ले जाने में شپږ میلیونه ټنه تجارتي مالونه او کارګو دا د هیوادونو ترمنځ تبادله کیږي. افغانستان نه بځي، افغانستان ته به راځي. نو 6 میلیونه ټنه ډیره زیاته اندازه ده. د دې ترڅنګ 10 لکه یا 1 میلیون انسانان او مسافرین به هم د همدې پټلۍ د لارې ځي راځي. د دې ترڅنګ دوی دپاره مجهز ترمینلونه او ځایونه جوړ کړي دي چې پاسپورټ او ویزا دا به چک کیږي، انتظارګاه ده. نو ښه ډیر منظم کار دی. دا البته په 2020 کال تیر حکومت کې دا پروژه شروع شوې ده. نو نور ګورو چې څه وایي. सक्षम रहेगी। इतने सब के बाद खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क के कई घरेलू फायदे भी हैं। पूरी दुनिया जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक है जहां पर बंजर रेगिस्तान से भरी हुई जमीनें हैं, इसीलिए इस देश को अपनी सभी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहना होता है। तो खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान ईरान से आसानी कम खर्चे में जरूरत की चीजें इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि गुड्स इंपोर्ट के लिए रेलवे का ऑप्शन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। इससे सस्ती लागत में अफगानिस्तान ईरान से कम कीमतों पर निर्यात कर पाएगा। खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क का एक और फायदा ये है कि दोगरून इस्लाम कला रोड और सूखे पर भारी यातायात काफी कम हो जाएगा। वर्तमान में अफगानिस्तान में ट्रांसपोर्ट डोगरून इस्लाम कला सड़क सीमा से किया जाता है और फिलहाल हजारों पैसेंजर्स ईरान और अफगानिस्तान के बीच यात्रा करते हैं। इस रेलवे नेटवर्क से अफगानी पैसेंजर्स ईरान और अफगानिस्तान के बीच कम समय और कम लागत पर अधिक आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। हेरात को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था और इस रेलवे नेटवर्क के माध्यम से गेटवे ऑफ इंडिया और सेंट्रल एशिया का ट्रांसपोर्टेशन अपग्रेड हो जाएगा और अपनी नई ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ हेरात ईरान, सेंट्रल एशिया और साउदर्न एशिया का ट्रायंगल सेंटर बन जाएगा। इसके अलावा खाफ हेरात रेलवे कई मायनों में अफगानिस्तान और ईरान दोनों के लिए रणनीतिक साझेदारी में भी अहम भूमिका निभाता है और दूसरे पड़ोसी के साथ अफगानिस्तान के संबंधों को मजबूत बनाने में एक अहम कदम माना जाता है। अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट से वो न केवल एक्सपोर्ट में तरक्की कर पाएगा बल्कि उसे चीन और बाकी दुनिया से जुड़ने में भी मदद करेगा। वर्तमान में अफगानिस्तान अपने बाकी के पड़ोसी देशों की तुलना में ईरान से अच्छी खासी मात्रा में व्यापार करता है, लेकिन भविष्य में केवल सड़क मार्गों से व्यापार पर निर्भर रहना अफगानिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। अफगानिस्तान फिलहाल अपने दो उत्तरी पड़ोसियों उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से रेलवे के जरिए जुड़ा हुआ है, इसीलिए अफगानिस्तान को अपने भविष्य के लिए ईरान को रेल लाइनों के माध्यम से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसके अलावा फ्यूचर में अफगानिस्तान ईरान के माध्यम से सेंट्रल एशिया और चीन से जुड़ जाएगा, इसीलिए شاوخوا پراتی د دې سره وصل شو. نو ډېره حیاتي پروژه ده او د افغانستان په صادراتو کې به ډېر زیات رول ولري او ډېر ارزانه به پریوزي صادرات او واردات के लिए इस रेलवे का पहला फायदा अफगानिस्तान को ईरान के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है। इस रेलवे के जरिए अफगानिस्तान मशहद, जाहिदान, चाबहार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। दूसरी तरफ इस रेलवे के माध्यम से अफगानिस्तान कैस्पियन सागर में ईरान के समुद्री बंदरगाहों से आसानी से जुड़ा हुआ है। आगे जाकर भविष्य में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क के जरिए तुर्की रेलवे नेटवर्क से और यूरोपीय अंतर महाद्वीपीय रेलवे नेटवर्क से भी जुड़ जाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान जो अब तक खुले तौर पर किसी भी देश से पूरी तरीके से नहीं जुड़ा था, सोचकर देखिए कि आगे चलकर खाफ हेरात रेलवे अफगानिस्तान को दक्षिण पश्चिम एशिया और यूरोप के रेलवे नेटवर्क से कितनी दूर तक जोड़ सकता है।
अभी तक अफगानिस्तान ने यूरोप से जुड़ने के लिए लापिस लाजुली परियोजना का इस्तेमाल किया है, जो अफगानिस्तान को तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की के माध्यम से यूरोप से जोड़ता है। लेकिन आगे जाकर खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान अपने क्षेत्र का और ज्यादा विस्तार कर सकता है। दूसरी तरफ अभी तक अफगानिस्तान पाकिस्तान के जरिए ही बंदरगाहों तक पहुंच पाता था, लेकिन अब वो रोड लाइन के जरिए भी बंदरगाहों तक पहुंच सकता है और खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क के जरिए अब ट्रेन से भी अफगानिस्तान बंदरगाहों तक पहुंच पाएगा, जो अफगानिस्तान के लिए दोहरा लाभ साबित होगा। इन शॉर्ट, अफगानिस्तान इस रेलवे नेटवर्क के जरिए 3 तरीके से लाभ उठा सकता है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये रेलवे नेटवर्क शुरू होता है तो अफगानिस्तान के दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में होगा। प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए अफगानिस्तान द्वारा सुना वड़ों की द्वारा सुना और सर्वे पकड़ाई की दावत इंडिया नो कम मतली kan लکه موږ یو چې 15 اړه ګوتې په غوړو کې دي، نو د افغانستان لپاره به طلایی چانس دی چې استفاده ترې وشي. اول ځل به وي چې افغانستان د یو ریل شبکې سره وصلېږي او دا ډېره زیاته ګټه لري. د دې یوه غټه ګټه دا ده چې موږ به د چابهار بندر سره د ریل پټلۍ د لارې وصل شو. دا په د کراچۍ بندر سره چې موږ تګ راتګ کوو، د کراچۍ بندر نو سامان راوړو په ټیلرو کې، او دا ټیلر بیا د ایساره یو هر ټیلر ډیر زیات مصرف لري. نو یو ټیلر به 2 کانتینر واخلي، 2 به واخلي، 3 به واخلي. نو ته نشي کولی چې دا د ریل سره دا مقایسه کړې، ځکه یو ریل کولی شي تر 20 30 40 50 پورې کانتینر یې درته راکش کړي او مصرف هم دومره نه راځي. ولې دغه کانتینر چې دي د ډیر ګران تمامېږي ټیلر او بیا هغوی هر وخت در باندې بندوي. نو دغه هر څه که وسنجول شي، نو لکه څنګه چې افغانان قشتېپې کانال د څومره خوشحالي کوي، زه وایم چې د قشتېپې کانال نه دې ته لا ډېره خوشحالي پکار ده. اوس که قشتېپې کانال ستا جوړ شي او ته دومره غنم تولید کړي چې هغه د صادرولو وړي، نو چا ته یې صادرې، په کومه لارې یې صادرې؟ ښه طریقه او ارزانه طریقه همدغه د ریل پټلۍ طریقه او لاره ده. इस रेलवे के जरिए अफगानिस्तान का पहला फायदा ये होगा कि वो ईरान के प्रोजेक्ट को रेलवे के माध्यम से बहुत कम दामों और बहुत जल्द खरीद पाएगा। वहीं दूसरी तरफ फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर में मौजूद ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने में आसानी रहेगी। और तीसरा, वो इस रेलवे नेटवर्क के जरिए तुर्की और यूरोप से आसानी से जुड़ पाएगा और उसकी पहुंच पूरी दुनिया तक हो जाएगी। खाफ हेरात रेलवे के इकोनॉमिकल फायदों के साथ ये दोनों देशों के लिए सकारात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। वैसे तो ये रेलवे अफगानिस्तान की पिछली सरकार के दौरान खोला गया था, लेकिन मौजूदा हालात में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, तब इसका दोबारा सक्रिय होना बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद इस रेलवे की रिकंस्ट्रक्शन और प्रोग्रेसिव कंडीशंस तालिबान और ईरान के अच्छे संबंधों को दर्शाता है। हालांकि इसी बीच कई देश ऐसे भी हैं जो ईरान और अफगानिस्तान के संबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान और ईरान के बीच तनाव का माहौल पैदा हो सके, लेकिन दोनों देश के राजनीतिक अधिकारी अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के साथ अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को भी मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान रेलवे नेटवर्क के प्रोजेक्ट पर 4 साल पहले इन तीनों देशों के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे और अब खाफ हेरात रेलवे प्रोजेक्ट के शुरू होने में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। वीडियो खो مولیده او د ویډیو مطلب همدا دی چې کار باید شروع شي په دې پروژه باندې، ځکه 4 کاله مخکې په دې باندې دغه د څو هیوادونو نمایندګان ناستو خبرې کړې وي. ځکه که کار شروع نشي نو خدای مکړه راتلونکي کې زموږ د ایران سره تعلقات خراب نشي. ځکه دغه دې راپور کې وایم چې ځینې خلک کوشش کوي چې د ایران سره زموږ تعلقات خراب شي تر څو دا پروژه ناکام شي. د دې ترڅنګ دغه اوس موږ خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان کوم پلاوی د اقتصادي پلاوی دی او د ترانزیتي مسایلو لپاره افغانستان ته راځي. یعنی موږ چې کله ایران ته مخ واړولو نو دوی بیا بیرته مداخله کوي او موږ منې کوي او موږ ته ځینې وعدې راکوي، بیا په خپلو وعدو نه ودرېږي. دوی سره موږ تړونونه مخکې هم کړي د اقتصاد د ترانزیت او د تجارت په اړه، خو دوی پرې وفا نه ده کړې. اوس افغانستان د دې موقع نه باید استفاده وکړي او ایران طرف ته مخ واړوي، د ایران اوبه، د ایران هغه پورټ او بندرګاهې د دې نه استفاده وکړي. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. لایک ګټه دی چې تا لایک کړله، یوټیوب پوهېږي چې ویډیو ښایسته ویډیو ده، تر څو نورو افغانانو او پښتنو ته هم دغه ویډیو ورسیږي. مننه، ښه وخت ښې چارې.